guys, welcome back to Academy of Earth Sciences. This is Akansha, and I am bringing you part 6 of the Assistant Hydrologist exam that was conducted in 2019. So let's get started. Let's begin with question number 71. Which one of the following minerals is called fool's gold? Okay, in order to be called fool's gold, a mineral must show some properties that are similar to gold. हैंड स्पेसिमेन में हमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी देखने को मिलनी चाहिए जिससे हमें लगे कि ये मिनरल शायद गोल्ड है। तो उसके लिए हमें एक तो मेटालिक लस्टर चाहिए होगा और गोल्ड जैसा गोल्डन येलो कलर हमें उसके लिए चाहिए होगा। सो लेट्स सी कि कौन से मिनरल में ये प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वी हैव हेमेटाइट। दिस वन इज हेमेटाइट। हेमेटाइट में हमको स्टील ग्रे या फिर ब्लैक कलर देखने को मिलता है अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, और अगर वो अर्दी कॉम्पैक्ट फाइन सेडिमेंट्स की फॉर्म में है तो हमको ब्राइट टू डल रेड रस्ट कलर यानी कि रस्ट रेड कलर देखने को मिल सकता है। सो दिस वन वुड नॉट बी करेक्ट क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया हमारा ग्रेइश एंड रेडिश कलर। देन वी हैव मैग्नेटाइट। दिस वन इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट हमको आयरन ब्लैक या फिर ग्रेइश कलर का मिल सकता है। सो इसमें भी हमको मेटालिक लस्टर दिखेगा बट गोल्डन येलो कलर यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा। So this is not correct. Then we have pyrite. Pyrite, this one is pyrite. As you can see कि इसका ब्रास येलो कलर है और यहाँ पे हमको मेटालिक लस्टर देखने को मिल रहा है। So this one would be correct. Let's see why halite would not be correct. Halite basically हमारा as you can see रॉक सॉल्ट है। व्हाइट कलर यहाँ पे हमें इस वाले डायग्राम में व्हाइट कलर है, बट ये हमें और भी कलर्स में मिलता है जिसकी पर्पल ब्लू पिंकिश कलर में भी हमको देखने को मिलता है, यहाँ तक कि हमें येलोइश कलर में भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे हमें नॉन मेटालिक लस्टर देखने को मिलेगा, मेटालिक लस्टर देखने को नहीं मिलेगा। सो हम कंफ्यूज नहीं होंगे हेलाइट को देख के। हम किस मिनरल को देख के कंफ्यूज होंगे? पाइराइट को, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। Moving on to the next question, the ability of rocks or sediments to contain water is determined by its. First we have permeability. Permeability क्या होता है? Permeability basically एक measure है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी material कितनी ease के साथ water को अपने through pass होने देता है। यानी कि कोई भी porous material कितनी easily water को yield करता है, वो उसकी permeability है। So this will not tell us whether it can contain water, it will basically tell us whether it can transmit water. So this one is not correct. Then we have porosity. Porosity will tell us about the void spaces in any sediment or any rock. Yani ki total void spaces divided by total volume of that material will give us the porosity. Let me write it. Voids, basically volume of voids upon volume of I would say rock. Okay, this will give us the porosity. Then we have viscosity. Viscosity will tell us the resistance that a material shows to deformation. Basically, any liquid material, the resistance that liquid material or fluids that show to deformation is called viscosity. अब विस्कोसिटी से भी हमको क्या पता चलेगा? मूवमेंट के बारे में पता चलेगा कि वो फ्लूइड कितनी इजीली मूव कर सकता है, क्योंकि एज वी नो जिन मटेरियल्स की विस्कोसिटी हाई होती है वो स्लोअर वेलोसिटीज पे मूव करते हैं। सो दिस वुड नॉट बी करेक्ट। देन वी हैव ट्रांसमिसिविटी. Transmissivity will tell us about the rate at which water moves horizontally in an aquifer. Again, this will not tell us about the ability to contain water. So this is also not correct. Let's consider porosity again. As we know, as we discussed, that void spaces divided by volume of rock. Now we must ask ourselves कि water कहाँ पर sediments के अंदर present होगा? Basically void spaces में present होगा, जो भी खाली जगह होगी rock में voids होंगे, वहाँ पर हमें water देखने को मिलेगा. So porosity will help us to determine the ability of water, the rock to contain water. So this one would be the correct answer. Moving on to the next question. A geological formation that holds enough water and transmits it rapidly enough to be useful as a source of groundwater is known as. Okay, let's start with एक्वीक्लूड. एक्वीक्लूड का मतलब क्या है कि इस रॉक फॉर्मेशन के अंदर पोरोसिटी है, यानी कि दिस कैन कंटेन वाटर इन इट, इट कैन होल्ड वाटर बट इट कैन नॉट ट्रांसमिट वाटर. सो this will not be useful as a good source of groundwater, so this is not correct.
एक्वीक्लूड को हम इंक्लूड से याद रख सकते हैं कि ये वाटर अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा बट इट विल नॉट ट्रांसमिट. ओके. नेक्स्ट वी हैव एक्वीफ्यूज. एक्वीफ्यूज बेसिकली नॉन परमिएबल एंड नॉन पोरस रॉक फॉर्मेशन होती है, यानी कि ना तो ये वाटर कंटेन करेगा और ना ही ये वाटर ट्रांसमिट करेगा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन वी हैव एक्विटार्ड. एक्विटार्ड क्या है? एक्विटार्ड में पोरोसिटी है, परमिएबिलिटी भी है, बट इसकी परमिएबिलिटी बहुत लो है, यानी कि ये वाटर ट्रांसमिट करेगा एट स्लोअर रेट्स, so it will not be good enough to use as a source of groundwater. So this is also not correct. Last we have aquifer. Aquifer basically it it has good porosity also and permeability. So ये water hold भी करेगा और water transmit भी करेगा rapidly so that it can be used as a source of groundwater. So this one would be the correct answer. Moving on to question number 74. Which seismic wave is responsible for maximum shaking during an earthquake? ओके. अर्थक्वेक के टाइम पे हमको दो टाइप की वेव्स मिलती है, दो टाइप की साइस्मिक वेव्स बेसिकली. एक हमें मिलती है बॉडी वेव्स, बेसिकली पी एंड एस वेव, एंड दूसरी हमको मिलती है सरफेस वेव्स, रेले वेव्स एंड लव वेव्स. बॉडी वेव्स हमको अर्थ के इंटीरियर में मिलती हैं एंड सरफेस वेव्स हमको क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हमें देखने को मिलती है, यानी कि ये वो वाली वेव्स है जो सरफेस के पास ट्रैप हो जाती है. सो बॉडी वेव्स से हमको शेकिंग फील होगी बट इट वुड बी लेस देन द शेकिंग दैट वी विल फील ड्यू टू द सरफेस वेव्स, क्योंकि ये क्लोजर है टू द सरफेस. सो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. देन वी हैव रेले वेव एंड लव वेव. अब रेले वेव क्या होता है? रेले वेव बेसिकली इसको हम ग्राउंड रोल भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इलिप्टिकल मोशन में पार्टिकल्स मूव करेंगे सच दैट दे शो बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी कि ग्राउंड वर्टिकली भी मूव होगा और हॉरिजॉन्टली भी हमारा जो सरफेस है वो मूव होगा, तो हमको दोनों मोशन देखने को मिलेंगे. देन वी हैव लव वेव. लव वेव में क्या होगा? लव वेव में हमको एक स्पेशल कंडीशन होगी जिसमें लव वेव्स फॉर्म होगी. उसके लिए क्या चाहिए हमें? एक लो वेलोसिटी जोन हो ओवरलाइंग अ हाई वेलोसिटी जोन. अगर नीचे एक हाई वेलोसिटी जोन है, उसके ऊपर एक लो वेलोसिटी जोन है, तो उस केस में हमको लव वेव्स देखने को मिलेंगी. Although these are more dangerous or we can say they cause more destruction than Rayleigh waves, but maximum shaking is due to Rayleigh waves, क्योंकि यहाँ पे हमें दो टाइप का मोशन देखने को मिल रहा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, as compared to love waves that will only show horizontal movement of the ground. So Rayleigh wave is the right answer. Let's move on to the next question. Shallow foundations are sensitive to the vertical displacement component, especially if the structure is. Okay. This question can be a bit confusing. First, let's understand what the question is trying to ask. ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किस टाइप के स्ट्रक्चर में हमको ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि विच स्ट्रक्चर इज मोर सेंसिटिव टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. ओके. ऑल्दो क्वेश्चन में अर्थक्वेक कहीं पे भी लिखा नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट कब होगी किसी भी स्ट्रक्चर की? जब अर्थक्वेक आएगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स दिए, एक तो हमें स्ट्रक्चर की हैवीनेस और लाइटनेस दिए, दूसरा हमें वाटर टेबल की शैलोनेस एंड डेप्थ. सो लेट्स अंडरस्टैंड बोथ द एस्पेक्ट्स. सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर के हैवी या लाइट होने का क्या इफेक्ट होगा. अगर कोई स्ट्रक्चर हैवी है और हम उसको शेक करने की कोशिश करेंगे या मूव करने की कोशिश करेंगे तो हमको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और जो लाइटर मटेरियल होगा वो कम फोर्स से ही उसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी. सो लाइट मटेरियल विल बी मोर सेंसिटिव टू डिस्प्लेसमेंट. सो लाइटर मटेरियल. ओके. हैवी वाले ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके. देन वी हैव वाटर टेबल इज शैलो एंड वाटर टेबल इज डीप. ओके. अब वाटर टेबल का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी फाउंडेशन पे? उसके लिए हमको एक टर्म समझनी होगी जिसका नाम है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. अब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या है? ये वो मैक्सिमम प्रेशर है जो हमें सॉइल और फाउंडेशन के कांटेक्ट में फील होता है. जो वो प्रेशर क्या करता है बेसिकली, वो प्रेशर अगर एक्सीड हो जाए तो हमें वहां पे शियरिंग फेलियर देखने को मिलता है. यानी कि किसी भी सॉइल में अगर हमारा बियरिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए, लिमिट क्रॉस हो जाए अगर वो, तो बियरिंग
क्या हो जाता है वहां पे, हमें shear fractures बेसिकली सॉइल में देखने को मिलते हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अब वाटर टेबल का इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर वाटर टेबल शैलो होगी, यानी कि वो हमारी सॉइल के पास में होगी, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी लूज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे उन सेडिमेंट्स के अंदर वाटर मिक्स हो जाएगा. सो सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो वो इजीली हल्के से प्रेशर में वहां पे हमको शियरिंग देखने को मिलेगी. सो वाटर टेबल शुड नॉट बी शैलो, नहीं होनी चाहिए वाटर टेबल. इंस्टेड वाटर टेबल शुड बी डीप, अगर हमें उस स्ट्रक्चर को बचाना है डिस्प्लेसमेंट से. सो डीप वाटर टेबल विल नॉट बी सेंसिटिव. व्हाट वुड बी सेंसिटिव, अगर वाटर टेबल शैलो है, वहां पे बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की इजीली लूज हो जाएगी, और वो वहां पे हमें शेयरिंग फेलियर दिखने को मिलेगा. और मटेरियल स्ट्रक्चर लाइट होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इजीली हो जाएगी उसकी. सो दिस वन वुड बी द राइट आंसर. Light and water table is shallow. So in this case, the foundation would be most sensitive to vertical displacement during an earthquake. Moving on to the next question. Bhuj earthquake of 2001 belong to which one of the following categories? Okay, 2001 में भुज में एक earthquake आया था, जिसका जो फोकस था earthquake का, वो प्लेट बाउंड्री पर ना होके विद इन द प्लेट था. और ये बहुत ही ज्यादा डेडली और डिजास्टर्स earthquake था, जिसमें बहुत हैवी लॉस हुआ था लाइफ एंड प्रॉपर्टी का. सो लेट्स सी कि कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है. फर्स्ट वी हैव डीप फोकस. डीप फोकस earthquake बेसिकली मोर देन 300 किलोमीटर डेप्थ पे ओरिजिनेट होता है. देन वी हैव शैलो फोकस, ये हमें अप टू 60 किलोमीटर डेप्थ देखने को मिलते हैं. देन वी हैव इंटरमीडिएट फोकस, ये हमें 60 टू 300 किलोमीटर डेप्थ पे ओरिजिनेट होता है. देन वी हैव इन बिटवीन डीप एंड इंटरमीडिएट फोकस, ये बेसिकली ट्रांजिशन जोन कह सकते हैं हम डीप और इंटरमीडिएट के बीच में. सो लेट्स सी कि भुज अर्थक्वेक कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है. भुज अर्थक्वेक का जो फोकस था वो 17.9 किलोमीटर डेप्थ पर था. सो एज यू कैन सी कि ये कहाँ पे फॉल करेगा, शैलो फोकस जोन में फॉल करेगा. सो दिस वुड बी द राइट आंसर. Moving on to question number 77, the calcareous and siliceous oozes are. Okay, first of all, let's understand कि oozes होते क्या है. Oozes are basically deep water sediments जिनके अंदर at least 30% microscopic remains हो of pelagic debris. Pelagic debris के microscopic remains होने चाहिए at least 30%, तो हम उस डीप वाटर सेडिमेंट को क्या बोलेंगे, ooze. ये कैलकेरियस और सिलिशियस दोनों कॉम्पोजिशन के हो सकते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव नेरेटिक डिपॉजिट्स. नेरेटिक डिपॉजिट्स बेसिकली शैलो वाटर डिपॉजिट्स होते हैं. ये हमको these are found overlying the continental shelf. So these are not deep water sediments, so not correct. Then we have littoral deposits. Littoral deposits का होता है हाई टाइड और लो टाइड मार्क्स के बीच में जो स्पेस होती है, वहां पे हमारे लिटोरल डिपॉजिट्स डिपॉजिट होते हैं, यानी कि द एरिया बिटवीन द मार्क ऑफ लो टाइड एंड हाई टाइड. अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट इन deep water, so this is not correct. Then last we have terrigenous deposits. Terrigenous deposits are basically deposits found by the denudation of continental rocks. So again यहाँ पे microscopic remains नहीं मिल रहे हमें, so not correct. Then we have pelagic deposits. Pelagic deposits क्या होते हैं? Pelagic deposits basically deep water deposits होते हैं जिनके अंदर प्लैंक्टोनिक या बेसिकली मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स के रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं. एंड दीज आर फाउंड इन द डीप ओशन. सो कैलकेरियस एंड सिलिशियस ooze will fall in pelagic deposits. So this one is the correct answer. Moving on to question number 78, which type of clay is found in the deepest part of ocean and is also abundant near the volcanoes? Okay, deepest part of ocean में हमको pelagic clay देखने को मिलती है जो red एंड ब्राउन कलर की होती है. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया डीप पार्ट ऑफ ओशन में हमको पेलाजिक डिपॉजिट्स मिलते हैं, और पेलाजिक डिपॉजिट्स में क्लेस जो होती है वो बेसिकली रेड एंड ब्राउन कलर की होती है. सो दीज टू ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट. क्या होता है डीप वाटर सेडिमेंट्स के अंदर, यानी कि डीप वाटर के अंदर जो आयरन और मैंगनीज होता है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में होते हैं, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक कार्बन की प्रेजेंस नहीं होती. सो ऑर्गेनिक कार्बन की एब्सेंस में वो अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में रहते हैं आयरन और मैंगनीज. तो वो क्या करते हैं, एक ब्राउनिश या रेडिश कोटिंग क्ले के ऊपर वो डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें रेड या ब्राउन कलर की दिखाई देती है. जैसे हम और डीप में जाएंगे ओशन के, तो क्या होगा, जो आयरन ऑक्साइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे हेमेटाइट में.
सो जो ब्राउन कोटिंग थी वो कन्वर्ट हो जाएगी रेड कोटिंग में, तो हमको वहां पे रेड क्लेस दिखाई देगी. सो इन द डीपेस्ट पार्ट वी विल फाइंड रेड क्लेस, बट वी विल ऑल्सो फाइंड ब्राउन क्लेस, बट वो हमको थोड़ी कम डेप्थ में मिलेंगी, यानी कि एज कम्पेयर टू रेड, ब्राउन हमको थोड़ी कम डेप्थ में मिलेंगी. बट इफ वी गो टू द डीपेस्ट पार्ट, देयर वी विल फाइंड रेड क्लेस, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू हेमेटाइट. So the correct answer would be red clay. Moving on to question number 79. Ocean tides are generated due to. Okay, ocean tides are generated due to a phenomena called tidal force. Tidal force में क्या होता है? Suppose दो bodies हैं. So due to the gravitational attraction, this body will try to stretch this body. यानी कि यहाँ पे ये इसको elongate करने की कोशिश करेगी towards its center of mass. अब ये यहाँ पे इलोंगेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों इस बॉडी के ऊपर ओवरऑल सेम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही, यानी कि जो सरफेस एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स दिस अदर बॉडी, उस सरफेस पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सरफेस. सो यहाँ पे क्या होगा, एक इलोंगेशन देखने को मिलेगा. अब अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो अर्थ के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो तो कॉम्पैक्ट रहेंगे, उसको मून या सन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बट जो वाटर सरफेस है वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक टाइडल फोर्स जनरेट होगी. उस टाइडल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये वाटर स्ट्रेच होगा टुवर्ड्स द मून, और हमें क्या देखने को मिलेगा कि वाटर इज राइजिंग. सिमिलरली व्हेन दिस एरिया विल मूव एंड कम टू दिस साइड, यानी कि अर्थ की रोटेशन होगी, तो अब हमें ये वाला एरिया पहले यहां देखने को मिल रहा था. नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये एरिया सपोज रोटेट होके यहां पहुंच गया, तो अब हमें एक डिफरेंट एरिया में ये सेम बल्ज देखने को मिलेगा. सो दिस इज ड्यू टू द टाइडल फोर्स. ये हमें मून और सन दोनों की वजह से देखने को मिल सकता है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. सो दीज टू ऑप्शंस विल बी करेक्ट. देन वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहाँ लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर. सो उसकी वजह से हमको वाटर लेवल में राइज या फॉल देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस वन वुड नॉट बी करेक्ट. देन वी हैव डिक्लिनेशन ऑफ मून एंड सन. अब डिक्लिनेशन क्या होता है, लेट मी इरेज ऑल दिस. डिक्लिनेशन का बेसिकली क्या मतलब है, सपोज दिस इज द इक्वेटर ऑफ अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर. सो अर्थ जब रोटेट हो रही है एंड मून इज ऑल्सो रोटेटिंग, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे अर्थ और मून के बीच में अलग अलग एंगल्स होंगे, यानी कि द एंगल विल राइज एंड फॉल, यानी कि एंगल इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा एज द अर्थ विल रोटेट. सो इक्वेटर के साथ मून का एंगल, द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द एंगल ऑफ मून एंड अर्थ इक्वेटर इज कॉल्ड डिक्लिनेशन. ठीक है. अब ये एंगल चेंज होगा तो क्या होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरियाज पे फोर्स लगेगी मून की. सपोज मून यहाँ पर है, इक्वेटर यहाँ पर है सपोज, तो अब हमें इस एरिया में बल्ज देखने को मिलेगा. देन अगर हमारी अर्थ रोटेट हो गई, मून भी रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के अराउंड, मून यहाँ पे पहुंच गया, तो अब हमें इस एरिया में बल्ज देखने को मिलेगा. अगर मून यहाँ पहुंच गया तो हमें इस एरिया में बल्ज देखने को मिलेगा. यानी कि जैसे जैसे मून और सन का एंगल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वेटर बेसिकली, उसी तरह से हमको अलग अलग एरियाज में बल्जेस देखने को मिलेंगे ऑफ वाटर. अब यहाँ पे हमें एक चीज और कंसिडर करनी है. सपोज ये अर्थ है, दिस इज मून एंड दिस इज सन. जब ये तीनों सेम लाइन में होंगे, यानी कि मून और अर्थ के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है हमारा, बेसिकली ये सेम लाइन में, यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो जब ये तीनों सेम लाइन में होंगे तो क्या होगा, जो टाइडल इफेक्ट सन क्रिएट कर रहा है और जो टाइडल इफेक्ट मून क्रिएट कर रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे. इसकी वजह से हमको क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा हाई टाइड्स देखने को मिलेगी. नॉट एक्स्ट्रा, बेसिकली हाई टाइड्स. सिमिलरली अगर हमारा सन विल नॉट मूव बेसिकली.
व्हाट विल मूव? मून। मून अगर यहाँ पे आ गया सपोज, अब यहाँ पे क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है बेसिकली। इस केस में क्या होगा? टाइडल इफेक्ट ऑफ मून एंड सन विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि यहाँ पे जो सन का टाइडल इफेक्ट है वो मून के टाइडल इफेक्ट में से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगी? लो टाइड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे प्रेजेंट होने की वजह से, यानी कि डेक्लिनेशन ऑफ सन एंड मून की वजह से हमको टाइड्स की हाइट में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. So let's see which option is correct. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Option C will be correct. Moving on to question number 80. Which one of the following satellites can be used for monitoring changes in groundwater storage? We have Landsat, IRS, LIS, QuickBird and GRACE. Out of the four options, these three satellites, they collect surface data. Basically, they will record the emitted and reflected energies that are coming from the surface. Although this data is very useful, we can use this to study about the vegetation in an area, population in an area, changes in landscape. We can demarcate the areas where we can find groundwater. But to know the storage capacity or to monitor the changes in groundwater storage, we do not need surface data alone. We need data of the inside of the earth also. So these satellites cannot be helpful to do that. So all these three options will not be correct. At last we have GRACE satellite. GRACE satellite क्या करता है? This satellite records the slightest changes in gravity on the earth surface. Earth surface के ऊपर जहाँ पे भी हल्का सा भी gravity change होता है, ये easily इस satellite से हम record कर सकते हैं. अब gravity से हमको ground water storage के बारे में कैसे पता चलेगा? जहां पर मास ज्यादा होगा, यानी कि जहां पर वाटर की प्रेजेंस की वजह से, सपोज रॉक्स के अंदर पोरोसिटी होगी, उन पोर्स में अगर वाटर प्रेजेंट है तो वो रॉक्स क्या हो जाएंगे? हैवी हो जाएंगे. सो उनके हैवी होने की वजह से वहां पे डेंसिटी इंक्रीज होगी. सो हम डेंसिटी चेंजेस से पता लगा सकते हैं कि ग्राउंड वाटर स्टोरेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ग्रेस. Moving on to question number 81. How much water the ice caps and glaciers contribute in terms of percentage at or near the Earth's surface? Let's see. This is basically the distribution of water in different areas. सबसे पहले 97.2% is in ocean and inland seas. Then 2.1% is in glaciers. 0.6 is in groundwater and soil moisture. Then less than 1% in atmosphere, less than 1% in lakes and rivers, and less than 1% in living plants and animals. So हमको हाईएस्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ओशन एंड इनलैंड सीज में एंड ग्लेशियर्स में हमको मिल रहा है 2.1%. So the correct answer would be option A. Moving on to question number 82. What type of well can be constructed for small domestic water supplies in clayey sandy soil region? Okay. हमें डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल या इरिगेशन पर्पसेज. सो हम क्या यहाँ पे क्या डग करेंगे? शैलो वेल्स डग करेंगे बेसिकली. सो डीप वाले ऑप्शंस वी कैन कैंसिल आउट. Then do we need large diameter well or do we need small diameter well? Okay. Clay sandy soil क्या है? Basically soft sediments है. यानी कि जब हम यहाँ पे well dug करेंगे तो यहाँ से particles क्या होंगे? They can fall into the well. अब ये particles well के अंदर जाएंगे, यहाँ पे caving होगी, particles well के अंदर जाएंगे, तो हमको इस well के अंदर क्या लगानी पड़ेगी? केसिंग लगानी पड़ेगी. इसके अंदर हम यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे हम लाइनिंग या केसिंग लगाएंगे ताकि जो ये सेडिमेंट्स हैं ये वाटर के अंदर या फिर वेल के अंदर ना गिरे. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट फॉर दिस लाइनिंग वी नीड अ लार्ज डायमीटर वेल, ताकि हम लाइनिंग को इनकॉर्पोरेट करने के बाद उस वेल को स्टिल उसका साइज जो क्या है बहुत ज्यादा छोटा ना हो जाए, इसलिए हम ऑलरेडी एक लार्ज डायमीटर वेल डग करेंगे ताकि हम वहां पे लाइनिंग इंसर्ट कर सके. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी शैलो एंड लार्ज डायमीटर वेल. Moving on to question number 83. What is the nature of water table contour map in the region of groundwater recharge? So, वाटर टेबल कंटूर मैप क्या होता है? बेसिकली हम वाटर टेबल के लेवल्स को
एज एलिवेशन शो करते हैं मैप पे, और उससे हम एक कंटूर मैप फॉर्म करते हैं किसी भी रीजन का. Now we have four options. First two options are talking about the shape of the contour lines, and last two options are talking about the packing, or we can say closeness of the contour lines. The shape will tell us whether there is recharge or discharge in that area. So it will talk about the recharge or discharge. Whereas packing will talk about the hydraulic conductivity, that is K. So hydraulic conductivity क्या signify करती है कि कितनी ease के साथ water can flow through the formation. But it will not tell us whether there is recharge or discharge in that area. So we don't need that. So these two options are cancelled out. First we have convex water table contours, and then we have concave water table contours. Concave water table contours tell us about discharge in the area, whereas convex water table contours tell us about the recharge in that area. So the correct answer would be option A. Moving on to question number 84, clay lenses occurring in alluvial formations which can produce water table conditions in the unsaturated zone of main unconfined aquifer are known as. ओके, सबसे पहले समझते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है. अनकन्फाइंड एक्वीफर वो वाला एक्वीफर होता है जिसकी जो टॉप वाटर लेवल होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ फॉल या राइज कर सकता है. उसके अंदर कोई भी कन्फाइनिंग इम्पर्मेबल लेयर्स नहीं होती जिसके बीच में वो सैंडविच्ड हो. सो अनकन्फाइंड एक्वीफर तो करेक्ट आंसर नहीं होगा. देन वी हैव लीकी एक्वीफर. लीकी एक्वीफर में क्या होता है, सपोज ये दो लेयर्स हैं, दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ परमिएबल मटेरियल सच एज सिल्ट. इसके बाद यहाँ पर हमारा एक एक्वीफर है ऑफ से सैंड या ग्रेवल, एंड दिस middle layer is sandwiched between two permeable layers. Again, silt. So such type of aquifer will be known as leaky aquifer, but it is also in the saturated zone only, so this cannot be the correct answer. Last we have perched aquifer. Okay, अब perched aquifer क्या होता है? Suppose ये एक फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमारा एक अनकन्फाइंड एक्वीफर है. सपोज दिस इज द वाटर टेबल. यहाँ पे हमारा एक अनकन्फाइंड एक्वीफर है, लेट्स कॉल इट UA. ये हमारी वाटर टेबल हो गई. यहाँ पर क्ले मटेरियल की कुछ लेंसेज प्रेजेंट होगी जिनके ऊपर वाटर ट्रैप्ड होगा. सॉरी. जब हम यहाँ पे वेल डग करेंगे तो हमको इजीली यहाँ पे वाटर मिल जाएगा इस शैलो डेप्थ पे, बट द रियल वाटर टेबल इज एट डीपर लेवल्स. लेकिन हमको यहाँ पे ही अनसैचुरेटेड जोन में ही वाटर मिल जाएगा, तो हमको क्या लगेगा कि यहाँ पर ही एक्वीफर है. सो इस एक्वीफर को हम क्या बोलते हैं, पर्च्ड एक्वीफर. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. Moving on to question number 85, what is the name of wide belt 5 to 15 km along the northern margin of Indo-Gangetic Brahmaputra plain where major artesian aquifers give rise to free flow in wells? Okay, सबसे पहले let's understand four deep basin. फोर डीप बेसिन क्या होता है? बेसिकली सपोज ये एक माउंटेन है, इसके सामने एक बेसिन जनरेट हो जाएगी विच विल बी पैरेलल टू द माउंटेन. और ये बेसिकली किस वजह से जनरेट होती है? ड्यू टू लिथोस्फेरिक फ्लेक्चर. यानी कि यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग होने की वजह से यहाँ का जो लिथोस्फेयर था वो बेंड हो जाता है, और वहां पे हमको एक बेसिन देखने को मिलती है जिसको हम फोर डीप बेसिन बोलते हैं. सो यहाँ पे तो हमको आर्टिजियन एक्वीफर्स देखने को नहीं मिलेंगे, सो दिस विल बी नॉट करेक्ट. देन वी हैव शिवालिक बेल्ट. शिवालिक बेल्ट इज बेसिकली अ माउंटेन बेल्ट, सो यहाँ पे भी हमको आर्टिजियन एक्वीफर्स देखने को नहीं मिलेंगे. देन वी हैव तेराई एंड भाबर बेल्ट. लेट्स सी दिस डायग्राम हियर. शिवालिक माउंटेन्स रेंजेस के पास में भाबर रेंज है जहां पे हमें लार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, बेसिकली ग्रेवल और बोल्डर साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं. अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो ग्रेवल, बोल्डर, कॉबल, पेबल साइज के पार्टिकल्स हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं. ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की जो पोरोसिटी है और परमिएबिलिटी
वो दोनों बहुत हाई है, एंड दिस एरिया एक्ट्स एज अ रिचार्ज एरिया फॉर द तराई रीजन। इसके जस्ट एडजेसेंट एरिया है तराई रीजन, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे पार्टिकल साइज थोड़ा कम है, बट स्टिल पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी इज वेल एंड इनफ। एज यू कैन सी यहाँ पे हमको एक स्लोप देखने को मिलता है। सो दिस भाबर रीजन एक्ट्स एज अ रिचार्ज एरिया। ये एक रिचार्ज एरिया की तरह एक्ट करता है, और यहाँ पे जो वाटर होता है दैट फ्लोज इनटू द एक्विफर्स ऑफ द तेराई रीजन। सो तेराई रीजन में जो भी हमको एक्विफर्स देखने को मिलते हैं, उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, फ्री फ्लो। यानी कि यहाँ पे क्या है, आर्टिजियन एक्विफर्स है। सो तेराई रीजन में हमें क्या देखने को मिलते हैं, आर्टिजियन एक्विफर्स, एंड भाबर एक्ट्स एज द रिचार्ज एरिया। So the correct answer would be Terai belt. Moving on to question number 86, which mineral provides highest swelling property to the soil? Okay, swelling property सबसे ज्यादा या बेसिकली स्वेलिंग प्रॉपर्टी किस मिनरल में देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है क्ले मिनरल्स के अंदर। क्ले मिनरल्स के अंदर क्या होता है, उनकी लेयर्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है। सो लेट्स सी, we have kaolinite and montmorillonite. Both of them are clay minerals. So one of these option can be correct. Then we have ilmenite and quartz. Ilmenites are basically oxides, and quartz are silicate minerals. So these two options will not be correct. Now we have kaolinite and montmorillonite. Kaolinite का structure, kaolinite basically 1:1 clay होता है, मीनिंग कि इसके अंदर हमें बेसिकली 2 लेयर्स देखने को मिलेंगी एक सिंगल क्रिस्टल में। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाएंगे, तो हमको यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। वेयरएज मॉन्ट मोरिलोनाइट में क्या होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट इज 2:1 क्ले, यानी कि यहाँ पर हमें 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी एक सिंगल क्रिस्टल के अंदर। एज यू कैन सी, यहाँ पे हमें 3 लेयर्स देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे इस लेयर के, इन दोनों लेयर्स के बीच में भी वाटर ट्रैप होगा, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होंगे। सो एज यू कैन सी, काओलिनाइट के कंपैरिजन में मॉन्ट मोरिलोनाइट के अंदर डबल वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो रहे हैं। सो हाईएस्ट स्वेलिंग प्रॉपर्टी विल बी ड्यू टू मॉन्ट मोरिलोनाइट। Moving on to question 87, what happens to soil quality if there is high sodium ion concentration in irrigation water? अगर इरिगेशन वाटर में सोडियम कंसेंट्रेशन हाई होगी और उस वाटर से हम सॉइल को इरिगेट करेंगे, तो सॉइल के अंदर भी जो सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा, जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो क्रस्ट फॉर्म करने लगेंगे अगर एक्स्ट्रा हाई सोडियम आयन उसमें प्रेजेंट है। तो वो क्रस्ट फॉर्म करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन होनी कम हो जाएगी। इनफिल्ट्रेशन कम होगी तो यहाँ पे क्या होगी, वाटर लॉगिंग होगी। सो इससे सॉइल का स्ट्रक्चर खराब होगा। सो बेसिकली इनफिल्ट्रेशन इज व्हाट इज, इट इज द परमिएबिलिटी, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल विल डिक्रीज, क्योंकि अब वाटर उसमें इजीली पास नहीं हो रहा है, क्योंकि सोडियम प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे कुछ क्रस्ट जैसी लेयर्स फॉर्म हुई है जो वाटर को इनफिल्ट्रेट होने नहीं दे रही है, परमिट नहीं कर रही टू सीप इनटू द सॉइल। सो what it will do, it will basically decrease the permeability of soil. So this one would be the correct answer. Moving on to question number 88. If the concentration of calcium 2 plus in water is 130 milligrams per liter, what will be the concentration of calcium 2 plus in milli equivalent per liter? Okay. So हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, मिलीग्राम्स पर लीटर को मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में कन्वर्ट करना है। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, मिलीग्राम्स पर लीटर में जो कॉन्सेंट्रेशन दी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द वैलेंसी ऑफ द आयन और एटम जो भी हमारे पास है, एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय द एटॉमिक वेट ऑफ दैट सेम एटम। ओके, सो हमारे पास कंसेंट्रेशन मिलीग्राम्स पर लीटर में कितनी है, 130, we will multiply it by 2, and then because calcium की वैलेंसी क्या होती है 2, and then we will divide it by atomic weight which is 140.08. This will become 260 upon
40.08, let's see, 260 divided by 40.008. The answer is 6.48. Let's see. Yeah. So the correct option would be option A. Moving on to question number 89. Which one of the following is the correct order of cation exchangeability for common ion in groundwater? ओके, ग्राउंड वाटर के अंदर क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में कुछ केटायंस प्रेजेंट होते हैं और बाकी केटायंस हमारे क्रिस्टल साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक केटायन एक्सचेंज होता है। हमारे पास मोनोवेलेंट केटायंस हैं जैसे K प्लस Na प्लस, डायवेलेंट केटायंस हैं जैसे कि Mg2 प्लस Ca2 प्लस। सो जो मोनोवेलेंट केटायंस होते हैं उनकी जो एड्सॉर्प्शन एनर्जी होती है वो लो होती है, इसलिए वो they are more likely to remain in the solution instead of getting exchanged with the cations that are in the crystal sites. So इनकी एनर्जी लो होने की वजह से these are not easily exchanged. सबसे easily exchange होंगे divalent cations जैसे कि Mg2+ and Ca2+. So let's see. यहाँ पे highest दे रखा है for K, so this option will not be correct. यहाँ पे highest है for Ca2+, okay, divalent cation, so this can be correct. यहाँ पर again they have given Na and K, both of them are monovalent cations, so this will also not be correct. Then in this option we have Ca2+, इसका highest होगा, then we have K, but Mg2+ is also divalent, so इस Mg2+ की exchangeability would be higher than K, so this one should be here instead. So this option is not correct, so the correct option would be Ca2+, Mg2+, K and Na. This one would be the correct answer. Moving on to question number 90. According to Indian standard, what is the maximum permissible limit of fluoride in groundwater for drinking purposes? Okay. Bureau of Indian Standards (BIS) decide करता है maximum permissible limit of different elements in the groundwater. So let's see कि फ्लोराइड की परमिसिबल लिमिट क्या होती है. दिस इज बेसिकली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. फ्लोराइड की लिमिट होती है 1.5 मिलीग्राम्स पर लीटर. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. Moving to question number 91, which one of the following will exhibit the maximum diurnal fluctuations in groundwater table due to evapotranspiration? Diurnal fluctuation in groundwater table क्या होते हैं एंड इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, पहले ये समझते हैं. इवेपोट्रांसपिरेशन दो प्रोसेसेस से मिलकर बना है, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर की जो रूट्स प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो डीप विद इन द सॉइल जाके वहां से मॉइस्चर या फिर वाटर कलेक्ट करती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज करती है. जो एक्सेस वाटर होता है जिसकी प्लांट को जरूरत नहीं होती वो थ्रू द लीव्स प्लांट से बाहर आ जाता है और वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन. सो इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन साथ साथ काम करते हैं. जहाँ पे वेजिटेशन होती है तो वहां पे दोनों को डिस्टिंग्विश करना कि इवेपोरेशन से कितना वाटर लॉस हो रहा है या ट्रांसपिरेशन से कितना वाटर लॉस हो रहा है, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है. इसलिए हम वहां पे इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कंबाइन करके इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज डायरनल फ्लक्चुएशंस इन ग्राउंड वाटर. डायरनल फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशन विद इन द सेम डे, यानी कि मॉर्निंग के अंदर जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल होगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दैट इन इवनिंग. मॉर्निंग में क्या होगा, इवेपोट्रांसपिरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा. सो मॉर्निंग में क्या होगा, वाटर लेवल विल ड्रॉप. सिमिलरली इवनिंग में क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स बंद कर देंगे. सो इवनिंग में क्या होगा, इवेपोट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा. सो इवनिंग में वाटर टेबल विल राइज. दिस इज डायरनल फ्लक्चुएशन. सो इवेपोट्रांसपिरेशन कहाँ पर होगा, बेयर सॉइल में नहीं होगा, सिर्फ इवेपोरेशन होगा बेयर सॉइल में. एक्सपोज बेडरॉक विद इन सॉइल, यहाँ पे भी सिर्फ इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. ट्रांसपिरेशन कहाँ होगा, जहाँ पे वेजिटेशन होगी. ओके, सो शैलो रूटेड वेजिटेशन एंड डीप रूटेड वेजिटेशन. शैलो रूटेड वेजिटेशन क्या होगी, वो सॉइल की डेप्थ तक नहीं जाएगी, यानी कि वो शैलो लेवल्स पे जो वाटर प्रेजेंट है उसको ही डिस्टर्ब कर सकती है. बट जो डीप रूटेड वेजिटेशन है वो deep within the earth जा रही है and it can reach the ground water table also. अगर वो ground water table तक पहुंच रही है तो वो ground water से water collect करेगी and evapotranspiration के through it will give it out to the atmosphere.
So deep rooted vegetation will affect the groundwater table, whereas shallow rooted vegetation will not affect the groundwater table much, क्योंकि वो shallow levels पे है, it is not reaching the groundwater level. So this one is also not correct. The correct answer would be deep rooted vegetation. Moving on to question number 92. Which one of the following is the characteristic of piezometric surface of flowing well? Okay. सबसे पहले दो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गई, पीजियोमेट्रिक सरफेस एंड फ्लोइंग वेल. सबसे पहले समझते हैं पीजियोमेट्रिक सरफेस क्या होता है. सपोज दिस इज एन अनकन्फाइंड एक्वीफर, इसके ऊपर कोई इम्पर्मेबल लेयर नहीं होगी. सो इस नीचे एक हमारी इम्पर्मेबल लेयर हो गई, उसके ऊपर हमारे यहाँ पे एक्वीफर हो गया. अब इसके टॉप पे कोई कन्फाइनिंग लेयर नहीं होगी, तो यहाँ पे वाटर लेवल इजीली राइज कर सकेगा. जहां तक भी मतलब जितना भी वाटर अवेलेबल है उसके हिसाब से वाटर टेबल विल राइज टू अ सर्टेन लेवल. तो यहाँ पे हम उस वाटर लेवल को क्या बोलेंगे? वाटर टेबल. बट इन केस ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर, यहाँ पे हमारे पास दो परमिएबल लेयर इम्पर्मिएबल लेयर के बीच में हमारा एक्वीफर है. तो यहाँ पे वाटर लेवल कहाँ तक राइज कर सकता है? सिर्फ इस सरफेस तक, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि इम्पर्मिएबल लेयर है. तो इस केस में वाटर टेबल हम डिफाइन नहीं कर सकते. इंस्टेड हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे वेल डिग करेंगे. अब इस वेल में जहां तक वाटर लेवल राइज करे, उस वाटर लेवल को हम क्या बोलेंगे? पीजियोमेट्रिक सरफेस. यानी कि पीजियोमेट्रिक सरफेस इज बेसिकली अ प्रॉक्सी ऑफ वाटर टेबल इन कन्फाइंड एक्वीफर्स. ये हो गया हमारा अनकन्फाइंड और ये हो गया हमारा कन्फाइंड का केस. ओके, दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू फ्लोइंग वेल. अब फ्लोइंग वेल क्या होती है? फ्लोइंग वेल ऐसी वेल होती है जिसके अंदर हमको वाटर को ड्रॉ करने के लिए पंपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि वाटर अपने आप ही ऊपर आ जाता है उसमें. सो लेट्स सी ये किस केस में होगा बेसिकली. लेट्स सी ऑल द ऑप्शंस. फर्स्ट, let's see, piezometric surface lies below the mean sea level and piezometric surface lies below the confined aquifer. अब piezometric surface confined aquifer के नीचे होगा, so इस वेल के अंदर ही पानी नहीं आएगा, तो पंप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पानी होगा ही नहीं, तो हम पंप क्या करेंगे? दिस वन वुड नॉट बी करेक्ट. सिमिलरली अगर ये मीन सी लेवल से नीचे है, यानी कि ये ग्राउंड सरफेस से भी नीचे है, तो इसमें से हमको पानी ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पंप करने की जरूरत पड़ेगी. So again, this is not correct. Then a piezometric surface lies below the ground surface. अब piezometric surface अगर ground surface के नीचे होगा तो water उस well के अंदर आ तो जाएगा, लेकिन उसको हमें draw करने के लिए या surface पे लाने के लिए again उसमें से हमें pumping की help लेनी पड़ेगी. So this will not be the case in a flowing well. So the correct option would be piezometric surface lies above the ground surface. Ground surface के ऊपर होगा, सो उसका क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसका हाइड्रोलिक प्रेशर ज्यादा होगा, सो इजीली वाटर विल कम टू द सरफेस और हम वहां से वाटर को विदाउट पंपिंग ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस वन वुड बी द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 93. In which type of unconsolidated sediments the capillary rise of groundwater is highest? Okay, capillary rise क्या होता है? Suppose this is a capillary tube and यहाँ पे water molecules present है. सो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है. ये वाटर मॉलिक्यूल्स they will start overcoming this cohesive force and instead they will develop adhesive force with the walls of the capillary tube. यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्टिक होने शुरू हो जाएंगे टू द वॉल एंड धीरे धीरे what we will see a rise in water table, sorry, in the water level. अब सरफेस टेंशन की वजह से ये जो मिनिस्कस यहाँ पे फॉर्म हुआ है वाटर लेवल का, दिस विल स्टे इन इट्स प्लेस, यानी कि ये अपनी प्लेस पे रहेगा, सरफेस टेंशन इसको मेंटेन करके रखेगी. एंड दिस इज वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके भी दिस इज मूविंग अपवर्ड्स, क्योंकि इसने वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की कोहेसिव फोर्स को ओवरकम करके एडहेसिव फोर्सेस जनरेट किए, जिसकी वजह से वाटर इज स्टिकिंग टू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. अब ये कैपिलरी ट्यूब हमको ग्राउंड में भी देखने को मिल सकती है. क्या होगा? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होंगी वो एज अ कैपिलरी ट्यूब एक्ट करेंगी. सो उन कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर भी कैपिलरी राइज होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू स्टिक टू द सॉइल पार्टिकल इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू ईच अदर. तो वहां पे भी हमें कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा.
सो लेट्स सी कि किस केस में कैपिलरी राइज हाईएस्ट होगा. बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. कैपिलरी राइज सबसे ज्यादा हाईएस्ट वहां पर होगा जहां पे कैपिलरी ट्यूब की जो डायमीटर है वो कम होगी. जितना कम डायमीटर होगा उतनी ही ज्यादा हाई कैपिलरी राइज होगी. सो लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव फाइन ग्रेवल. फाइन ग्रेवल बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके बीच में जो स्पेसेस होंगी वो भी बड़ी होंगी. तो वहां पे हमें बड़े डायमीटर्स की कैपिलरी ट्यूब्स एक तरह से कह सकते हैं देखने को मिलेंगी. सो फाइन ग्रेवल विल नॉट बी द अप्रोप्रिएट आंसर. देन वी हैव मीडियम सैंड, कोर्स सैंड एंड सिल्ट. Out of these three options, silt has the lowest particle size. मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड दोनों में पार्टिकल साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू सिल्ट. दोनों के अंदर क्या होगा, कैपिलरी राइज विल नॉट बी दैट हाई एज कम्पेयर टू सिल्ट, क्योंकि सिल्ट के अंदर कैपिलरी ट्यूब्स क्या होंगी, पतली होंगी, क्योंकि साइज पार्टिकल्स का साइज छोटा है, उनके बीच की स्पेसेस भी छोटी होंगी. सो सिल्ट में हमको सबसे ज्यादा कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा. सो दिस वन वुड बी द करेक्ट आंसर. Moving on to question number 94, a soil sample has D60 and D10 values of 1.9 millimeter and 0.2 millimeter respectively. The uniformity coefficient of the soil will be. Okay, सबसे पहले uniformity coefficient and D60 and D10 values को समझते हैं. D60 का क्या मतलब है? D60 का मतलब है कि जो diameter का size है, 60% of particles have finer size than this. यानी कि किसी पर्टिकुलर पार्टिकल साइज से अगर 60% पार्टिकल साइज उस पर्टिकुलर साइज से कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, D60. सिमिलरली 10% क्या होगा, इफ 10% ऑफ द पार्टिकल्स हैव साइजेस फाइनर देन दिस. ओके, so let's understand next कि uniformity coefficient क्या है. Uniformity coefficient basically it tries to tell us कि soil particles कितने similar हैं in size. अगर uniformity coefficient graded है, यानी कि वो uniformly graded है soil, तो उसके अंदर जो particle size होगा वो similar होगा. So let's understand कि इसे calculate कैसे करते हैं. इसको calculate करने का basically formula क्या है, Cu is equal to D60 upon D10. Very simple. क्या करेंगे हम, 1.9 डिवाइडेड बाय 0.2, सो क्या हो गया, 19 डिवाइडेड बाय 2 इज 9.5. द करेक्ट आंसर वुड बी ए. Moving on to question number 95, which one of the following particles contributes to the greatest amount of surface area in unconsolidated formations? Okay, पहले हमारे पास है gravel, then we have coarse sand, then silt and clay. Okay, suppose हमारे पास ये एक वॉल्यूम है, सपोज एक हमारे पास ये एक क्यूब है, इसके अंदर हमें ग्रेवल साइज के पार्टिकल्स डालने हैं, और सेम इसी साइज का एक क्यूब है जिसके अंदर हमें कोर्स सैंड डालनी है. सपोज 4 हमारे पास क्यूब्स हैं ऑफ सेम वॉल्यूम. यहाँ पे हमें ग्रेवल, इस वाले में हमें ग्रेवल डालना है, यहाँ पे हमारे पास कोर्स सैंड, यहाँ पे हमारे पास सिल्ट एंड देन क्ले. आउट ऑफ दीज 4 ग्रेवल का सबसे बड़ा साइज है, देन सैंड, देन सिल्ट, देन क्ले. तो क्या होगा, इस वॉल्यूम में ग्रेवल के जो पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू कोर सैंड, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बड़े हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेस. इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा होंगे, ठीक है. सिल्ट के अंदर थोड़े और ज्यादा होंगे. सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हमें किसमें देखेंगे, देखने को मिलेंगे, क्ले के केस में. सो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया वो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा. सो फॉर द सेम वॉल्यूम ग्रेवल के केस में हमें कम सरफेस एरिया देखने को मिलेगा, एंड फॉर द सेम वॉल्यूम क्ले के केस में हमको सबसे ज्यादा सरफेस एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो क्या है कम एरिया या कम स्पेस लेंगे, उसकी वजह से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे. So this will occupy a large surface area. Let's see this table also. यहाँ पे पार्टिकल साइज हमने क्या लिया, यूनिफॉर्म स्फेयर्स.
इसको हमने कंपेयर किया है with the surface area. As you can see, gravel के केस में surface area is 3.14 and in case of clay, the surface area is 15,700 centimeter square. So as you can see, कि number of particles is also increasing and the surface area is also increasing. But यहाँ पे इस सारे केस में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके चले हम कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम है सभी केसेस में. So as you have understood by now, the correct answer would be clay. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up. And if you have any questions and queries, write it down in the comment section below. Do subscribe to our channel because we will be posting content like this very often. So I'll see you in the next video. Goodbye.